Hello, everybody. Welcome to iExamV. This is Amrita, your legal faculty. And आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ the syllabus and strategy to prepare for IBPS RRB Scale 2 Law Officer Examination. But before we start with the discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay tuned with such kind of updates for government exam preparation as we make it easy over here. You can also contact us on this number which you can see on the screen. You can write to us at hello@iexambi.com and also visit our website for more details relating to government exams preparation. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन. मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें IBPS RRB लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में. ये एग्जामिनेशन कब होता है उसका टेंटेटिव कैलेंडर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था. ये इस ईयर में एग्जामिनेशन कब होने वाला है, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड ऑल्सो आई हैड डिस्कस्ड with you about the eligibility criteria scheme of examination. इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी और स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू क्रैक द एग्जामिनेशन. If you have a vision which is without a strategy, then it remains an illusion. This is very 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 true. अगर आपका ड्रीम है कि आपको IBPS RRB एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपको लॉ ऑफिसर बनना है बैंक में, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यू जस्ट हैव अ गोल बट नो स्ट्रैटेजी, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, दैट इज जस्ट अ ड्रीम. So this is the most important part in cracking any examination, which is an effective strategy. Not only a strategy, I would add something over here, that is an effective strategy. ये word आप मेरे तरफ से add कर लीजिए. इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, आपको एक गाइडलाइंस दूंगी. इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू हैव टू डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर दैट पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर टारगेट्स. टेंटेटिव कैलेंडर के हिसाब से आपका एग्जाम कब होगा? 24th of September. So your aim is 24th of September. Start calculating the number of days from today. मतलब मई का अगर आप मंथ कैलकुलेट करोगे, अभी आपके पास मिड ऑफ मई है, आप स्टार्ट करोगे अगर पढ़ना अभी, तो दिस इज फॉर श्योर कि जब तक आपको परफेक्ट लिंक नहीं लगती पढ़ाई में, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर, आई कैन अंडरस्टैंड. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मिड ऑफ मई से आप आपका टाइम कंसिडर करो जो प्रोडक्टिव स्टडीज देगा. मिड ऑफ मई till mid of September, you can consider that you have around 4 months in your hands. So how you have to devise your strategy? Like that, you have to plan. Pattern of examination is very simple for IBPS RRB. Just you have one written examination and then followed by interview if you are shortlisted. And this examination is having a weightage of 80, interview is a weightage of 20. So you can see कि ये examination बहुत important है qualify होने के लिए, shortlist होने के लिए and final appointment के लिए भी. It is not just till the extent of qualifying. सो रिटन एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है. उसका स्कीम हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 240, मार्क्स आर 200, ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes. मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग तो है ही, उसके साथ सेक्शनल कट ऑफ्स भी प्रेजेंट है. An interview is going to be of 100 marks. Overall, your selection will be out of 300 marks. Now syllabus, what is the syllabus? Legal का आपका syllabus होगा professional knowledge, that is for law officer examination scale 2. Professional knowledge में legal का syllabus होगा. We will discuss this syllabus in detail. Other than law, you have papers for reasoning. You have English और हिंदी, जो भी आप choose करो. Quantitative aptitude, that will be along with some data interpretation, computer knowledge and financial awareness. इस तरीके से आपको पूरा syllabus comprehensively cover करना होगा. रिमेंबर द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव. अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो गूगल कर लीजिए. कॉम्प्रिहेंसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर. आपकी स्टडीज सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में ज़्यादा अच्छे से करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको सारे पार्ट्स में से जो जो इम्पोर्टेंट है वो थरोली प्रिपेयर करना होगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो रादर दैट इज द करेक्ट वर्ड. प्रोफेशनल नॉलेज में आपका सिलेबस में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स है, कोई भी लीगल एग्जामिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स. Then you will have Companies Act to prepare, transfer of property, very important, law of torts, consumer protection, administrative law, principles of natural justice, jurisprudence, interpretation, legal terms, maxims, arbitration, conciliation, SURFACE, आरआरबी, ये सब बैंकिंग के लॉज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, आई वुड से. सरफेसी हो गया, बैंकिंग हो गया. अभी इनमें से जो जो आपको रेड में मार्क किए हुए दिख रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट्स आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको पीपीटी भी मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. यू कैन फाइंड इट अटैच एंड डाउनलोड इट. So this is how the important topics you can chalk out. These are the important subjects rather. First, Banking Ombudsman Scheme, Negotiable Instruments Act, RTI Act, IBC, Hindu Succession, Adoption, Maintenance, Minority, Guardianship, RERA, TRT. ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं इस स्लाइड पे स्पेशली, ये सारे लॉज बैंकिंग के जो है, एंड सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्डियनशिप भी आ जाता है उसमें, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन सब्जेक्ट्स को आपको पहले प्रायोरिटी देनी होगी, द वंस विच आई हैव मार्क्ड इन रेड. नोट देम डाउन, इनको आपको अच्छे से कवर करना है. बाकी सब्जेक्ट्स का तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही है. देन कमिंग टू रीजनिंग, यू हैव कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलॉजिज्म होगा इंपॉर्टेंट. देन इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स, ब्लड रिलेशनशिप्स, कोडेड वंस, सीटिंग अरेंजमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा. आई वुड से प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम सब्जेक्ट्स आर थ्योरी बेस्ड, सम आर प्रैक्टिस बेस्ड. इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश इज ऑल्सो, सब कहते हैं थ्योरी, बट नहीं, इट इज प्रैक्टिस बेस्ड. पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मैच कॉलम्स, तो ये सब आपको ये भी प्रैक्टिस बेस्ड करोगे अगर आप रेगुलरली, तो आपका हो जाएगा. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डीआई, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रैक्टिस बेस्ड, एंड ये आपको मॉक टेस्ट सॉल्विंग से ही आएगा. सो मार्क दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सब बेसिक होता ही है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में होता है. इसको आपको प्रिपेयर करना होगा. प्रैक्टिस बेस्ड मैं बार बार कहूँगी, सॉल्व मॉक टेस्ट फॉर दीज क्वेश्चंस. एंड कंप्यूटर नॉलेज, अगेन बेसिक कंप्यूटर्स होना चाहिए. अगर आपका MSc IT एंड ऑल हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बेसिक कंप्यूटर्स तो हमें आता ही है उतना. MS ऑफिस में नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. सो दिस इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस. थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स भी पता होना चाहिए, थियोरी पार्ट भी है उसमें थोड़ा सा. You can do it, it's not a big deal. Financial awareness, this is again going to be a very important part for you people, let me tell you. आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना होगा. अगर आप रेगुलरली इसमें पढ़ाई करते हो तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. दिस यू कैन रिमेंबर इन योर स्ट्रैटेजी पार्ट, कि रेगुलरली आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते रहना होगा. एक दिन में पढ़ के नहीं होगा, 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ये आपको रेगुलरली इसे पढ़ते रहना होगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट. जितने भी RBI सर्क्यूलर्स हैं, जो करंट अफेयर्स है फाइनेंशियल सेक्टर में, मार्केट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बजट के बारे में, देन करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है, म्यूचुअल फंड्स, बेसल नॉर्म्स, ये सब जितना भी है ना, रेगुलरली आपको अपडेटेड रहना होगा व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर. नेक्स्ट इज सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है. ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, स्टिल एक बार आपको मैं बता दूं इससे पहले हम हमारी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें. द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 hours 30 minutes, एंड सिंगल लेवल में ही सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे. प्रोफेशनल नॉलेज विल बी योर लॉ पार्ट, रेस्ट इज द अदर सब्जेक्ट्स. यू कैन सी राइटली 240 questions होंगे in all, and then they will be carrying 200 marks in all. Coming to the strategy part now, start counting days. As I told you, you may count the days, and around आपके पास 4 months है. अगर मैं mid of May से पकड़ूँ तो mid of September तक आपके पास 4 महीने का टाइम है.
Start preparing well from now. Start counting your days and plan. Have a plan in your hands, friends. This is a rough idea that I'm giving you. Sets में मैंने आपको divide करके दिया है यहाँ पे in the form of sets. You can just set 1 में set 2 में, मतलब ये आपको पैरेलली करने होंगे सेट्स में. लॉ का ऑफ कोर्स एक सेट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. उसके साथ साथ आप इंग्लिश और फाइनेंशियल अवेयरनेस ये पहले 2 मंथ्स में आपके हिसाब से डिवाइड करके कर सकते हो. किसी किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है तो उसको आप बाद में ले सकते हो. पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस आप रेगुलरली रीड करो. लॉ तो आपको करना ही है रेगुलरली. सेट 1 वाला सब्जेक्ट वास्ट भी है लॉ कंपैरेटिवली. इंग्लिश जिसका सपोज वीक है तो वो पहले इंग्लिश ले ले, इंग्लिश के प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के. एज आई टोल्ड यू ये सब आपको सॉल्विंग बेस्ड पार्ट है. इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, कॉन्ट्स, DI. देन फ्रॉम जुलाई मिड यू कैन स्टार्ट विद कॉन्ट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट एंड रीजनिंग अलॉन्ग विद दैट यू शुड डू. दैट विल ऑलवेज बी अ गुड सेट. मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किसके साथ क्या पढ़ना है. लॉ, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश को आप एक साथ उठा लो पहले स्लॉट में जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं. नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप ये वाला पार्ट उठा लो. सब एक साथ करने जाओगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन हैव अ गुड डिविजन. अब इसमें कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग आप सेट 2 में ले सकते हो. ये भी प्रैक्टिस बेस्ड है इसलिए मैंने इसे सेट 2 में रखा है. जो आपको जैसे जब मैं कंप्यूटर्स किसी किसी का ऑलरेडी अच्छा होता है तो उन्हें इसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं. सो ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ just a guideline which I can give you roughly, but ultimately you have to decide your own strategy according to your strengths and weaknesses. If your cons and DI is already good, then you can shift this part here and you can shift this part here. ऐसे आप changes कर सकते हो depending on your strengths and weaknesses, because हर individual के strengths, weaknesses, mental capacities, grasping power अलग होती है. तो उस हिसाब से आपको आपका टाइम डिवाइड करना होगा. इतना ध्यान में रखो आपके पास रफली हैंड में 4 मंथ्स हैं. एंड सितंबर का मंथ प्लीज ट्राई टू कीप इट फॉर रिविजन एंड ट्राई एज मच ऑफ मॉक टेस्ट्स एज यू कैन. iExamBee is there to help you for this purpose, as we have all the mock tests free at iExamBee. So categorize your subjects first. जैसे लॉ है वो थियरी बेस्ड है, उसको आप पहले कवर कर लीजिए. और साथ में जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, वो आप साइड बाय साइड कर सकते हो. फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको रेगुलरली करना होगा. यू कैन नॉट जस्ट रीड इट इन द फर्स्ट 2 मंथ्स एंड देन फॉरगेट इट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो कीप इट इन कंटिन्यूटी. यू कैन डू इट एवरी डे. थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो. लाइक दिस यू कैन प्लान योर ओन स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं कॉन्ट, DI, इंग्लिश, ये सबको आपको उस तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ना होगा और जो थियरी बेस्ड है उसको उस तरीके से कैटेगराइज करना होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Then stop buying mock tests. We have all the mock tests free at iExamBee. You can see how you can go to iExamBee website and IBPS RRB scale to officer select कीजिए. Free mock tests available है. Solve कीजिए. Solve as much as you can and prepare 50% faster with iExamBee. We have started new batch for IBPS from 30th of April. These are all the legal exam preparation courses available at iExamBee. ये मैंने आपके साथ शेयर किया है. ये है सारे कोर्सेज के डिटेल्स. और डिटेल्स के साथ आपके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं iExamBee के नंबर पे. एंड ऑल्सो वी हैव डेली लाइव डाउट क्लासेस सेशंस for all the students who are enrolled with us. You can come to us and clarify your doubts. And also before buying, you can activate our demo courses that are for free. You can try and then buy the course. So this is all about you. We have expert faculty for legal. Me, myself, Amrita Johar, Neha Dubey and Vidika Bansal. We are here to guide you and help you prepare 50% faster with iExamBee. So come to us. For any doubts and queries, you can also come in the comment section of this video. आप इसमें आपके queries भी लिख सकते हैं. And also you can write to us at hello@iexambee.com. Thank you so much everybody. Have a good day.